वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स और ऑल्सो नोन एज जीपीसी और ओआर और सेवन पास ट्रांस membrane domain receptors. Okay, that is 7 TM receptor. So this GPCR is or a large family, or we also call that heptahelical heptahelical because 7 helicals are present in this type of receptor, or serpentine receptor, which is linked with another protein, that is G protein. It is also called G protein linked receptor. G protein linked receptor. So this GPCR is a large group of proteins, or we can call that the large group of membrane receptors or extracellular receptors, which are evolutionally related to each other. They detect molecule outside the cell and activate response cellular response, या हम यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, which activates cellular response. Okay, coupling with a G protein, they are called 7 transmembrane receptor. तो ये मेनली किसके साथ काम करते हैं? एक जी प्रोटीन के साथ कपल करके काम करते हैं, और इसको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर इसलिए कहा गया है, या 7 TM या हेप्टाहेलिकल या सर्पेंटाइन रिसेप्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये रिसेप्टर है इसके पास 7 अल्फा हेलिसिस रहते हैं, जो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हेलिसिस है। ठीक है, which crosses the plasma membrane. That's why it's also called serpentine receptor or heptahelical receptor or 7 transmembrane receptor. So it's the largest family of cell surface receptor that transmits signals through intracellular targets via intermediary protein, that is called the G protein, or simply known as guanine nucleotide nucleotide guanine nucleotide binding protein. Okay, so this G protein coupled receptors are found in eukaryotes including yeast and conoflagellates. तो ये जो GPCR है, it is only found in eukaryotes, only found in eukaryotes including yeast, conoflagellates and animals. Okay, so more than 1,000 such G-coupled receptors have been identified, including the receptor for eicosanoids. So 1,000 are G-protein coupled receptors are identified, in which there are receptors for eicosanoids,
then uh, peptide hormones, peptide hormones, then neurotransmitters, neurotransmitters like acetylcholine, GABA, glutamate. Okay, neurotransmitters, neuropeptides, एट्सेट्रा. तो इन सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए जी कपल रिसेप्टर्स पाए गए हैं जो इन लिगेंड्स के साथ बाइंड होके जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो वहाँ पे शो करता है. सो इन एडिशन इसके साथ साथ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स फॉर or that are responsible for smell, light, और हम साइट बोलेंगे साइट एंड टेस्ट. तो जो स्मेल के लिए रिसेप्टर है वो भी GPCR से बिलोंग करता है. जो लाइट या साइट के लिए जो भी रिसेप्टर्स है, जहाँ हम विजन के लिए जो रिसेप्टर्स है इट इज़ ऑल्सो जी कपल्ड रिसेप्टर प्रोटीन. देन टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर है इट इज़ ऑल्सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. So the G protein coupled receptors are structurally and functionally related proteins characterized by 7 membrane spanning alpha helices. तो ये जो जितने भी G protein coupled receptors है वो क्या है? They are functionally and structurally related proteins है, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है. तो स्ट्रक्चरली ये कैसे हैं? दीज आर 7 हेलिसेस, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसिस. जब हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन. तो ये इस तरह से है. तो इसके 7 अल्फा हेलिसिस है दैट मेनली दैट क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये एक डोमेन हो गया. देन सेकेंड डोमेन, then third domain, then fourth domain, then fifth domain, then sixth domain, then the seventh domain. तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं. So 7 alpha helices which crosses the plasma membrane 7 times. That's why it's called 7 transmembrane receptor. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 बार ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है. ठीक है, तो जितने भी ऐसे आपको रिसेप्टर्स दिखेंगे, सो दीज रिसेप्टर्स बिलोंग्स टू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. So the binding of the ligands to extracellular domain of these receptor induce a conformational changes. अगर हम यहाँ पे देखें, that is the amino site, this is the cytosolic site. So यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन्स रहते हैं. ठीक है, these are the carbohydrate part, carbohydrate part which helps in the ligand binding. So this is the cytosolic part. This is the cytosolic part, and this is our plasma membrane. This is a cytosolic site, and this is the extracellular site. Okay, so these proteins, that is the G protein couple receptors, are I've already told you found in many eukaryotes, only in eukaryotes, including yeast, conoflagellates, and animals. And the ligands that bind and activate the receptors
include, I have already told you, that is the hormones, neuropeptides, neurotransmitters, then light sensitive compounds, compounds, pheromone compounds, taste compounds. So the ligand that bind and activate these receptors include, I've already told you that, and it also includes small molecules to peptide to large protein. So G protein coupled receptors are also involved in many diseases. Okay, so there are two principal signal transduction pathway involving the G protein coupled receptor. The first is the CAMP pathway, and second is the phosphatidyl inositol pathway, phosphatidyl inositol पाथवे। तो इन दो पाथवे के थ्रू ये क्या करता है, अपना जो एक्शन है वो शो करता है। ठीक है, एक तो दैट इज द एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे, या जिसको हम क्या बोलेंगे CMP पाथवे, और जो दूसरा है दैट इज द फोस्फो आइनोस्टोल पाथवे, जिसमें वो फोस्फोलिपेज C बीटा, फोस्फोलिपेज C अल्फा, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन दो तरीकों से ये जो GPCR है वो अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो सबसे फर्स्ट जो GPCR जिस पे स्टडी हुई थी दैट इज द इपिनेफ्रिन, दैट इज द बीटा एड्रिनर्जिक receptor which binds to a ligand, that is the epinephrine, and these receptors will mainly activates the adenylate cyclase। तो जो सबसे पहला जो GPCR स्टडी किया गया था वो इस पे हुआ था, दैट इज द एडिनाइलेट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के लिए, जो मेनली बाइंड होता है किसके साथ, उसका लिगेंड है एपिनेफ्रिन। ठीक है, जिसको एड्रेनलिन भी कहा जाता है या जिसको कैटाकोलामाइन भी कहा जाता है, जो मेनली 3 हैव हार्मोन भी इसको कहा जाता है। जब इट रिलीज इज मेनली व्हेन वी स्टक इन अ कंडीशन ऑफ फियर। ठीक है, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो उस टाइम पे ये जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज 3F हार्मोन, दैट इज द फाइट फ्लाइट। ठीक है, फाइट फ्लाइट। ठीक है, या तो डरो, उसके बाद या तो लड़ो या तो भागो वहाँ से। ठीक है, सो दिस हार्मोन बाइंड्स टू दिस बेटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड इट activates adenylate cyclase which causes the formation of CAMP। okay, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि नॉर्मली ये जो GPCR है, ठीक है, दैट इज द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तो वो एक इंटरमीडिएटरी प्रोटीन के थ्रू अपना एक्शन शो करता है, जिसको मैंने आपको कहा दैट इज द गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग फैक्टर, दैट इज द जी प्रोटीन। तो वो जी प्रोटीन के साथ बाइंड होके अपना एक्शन करता है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है। तो होता क्या है उस टाइम पे, जब लिगेंड बाइंड होगा इस रिसेप्टर के साथ, तो जैसे ही लिगेंड बाइंड होगा तो इस रिसेप्टर में एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है। ठीक है, दैट अलाउज द साइटोसोलिक पार्ट, जो ये साइटोसोलिक पार्ट है, इट टू बाइंड विथ जी प्रोटीन एसोसिएटेड विद द इनर फेज ऑफ द प्लाज्मा। तो यहाँ पे जी प्रोटीन आके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, जब वो कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होता है उसमें, तब जी प्रोटीन वहाँ पे बाइंड नहीं होता है। तो जैसे ही वहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आएगा तो वहाँ पे जी प्रोटीन बाइंड हो जाता है, एंड दिस इंटरेक्शन एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन। जो ये इंटरेक्शन होता है इसके बीच में साइटोप्लाज्मिक साइट और इस जी प्रोटीन के साथ, तो वो क्या करता है, इस जी प्रोटीन को इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एंड कैरीज द सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो जी प्रोटीन है वो अलग हो जाता है
इस रिसेप्टर से, ठीक है। इट डिसोशिएट, क्योंकि जी प्रोटीन मेनली 3 पार्ट से बना होता है, दैट इज़ द अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। मेनली जो अल्फ़ा है वो अलग हो जाता है, ठीक है, अल्फ़ा अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग हो जाता है। एंड दिस अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा कैरीज द सिग्नल टू द इट्स टारगेट प्रोटीन। कभी कभार ये बीटा गामा भी सिग्नल आगे कैरी करता है, ठीक है। तो जो ये सिग्नल कैरी करता है जो इंट्रासेलुलर टारगेट से, या तो वो कोई एंजाइम होगा या तो कोई आयन चैनल होगा, ठीक है। इनका टारगेट या तो एंजाइम होगा या कोई आयन चैनल होगा, ठीक है, जहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाते हैं एंड उस सेल में वो सेलुलर रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं, ठीक है। अब हम जी प्रोटीन के बारे में थोड़ा बताएंगे। हमने उसके बारे में देखा, दैट इज़ द रिसेप्टर के बारे में देखा हमने। तो रिसेप्टर मैंने आपको कहा कि इट्स अ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इसमें 7 बार ये क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। सो अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो जो एग्जैक्ट साइज है किसका, जीपीसीआर का सुपर फैमिली इज अननोन, ठीक है। तो जो अगर हम इसका साइज देखेंगे जी प्रोटीन का, तो वो क्या है, अननोन है। बट एटलीस्ट 831 different human genes have been prepared to code them for genome sequence analysis, that is 831, ठीक है। 831 डिफरेंट जो जीन्स है, मेनली ह्यूमन जीन्स, वो इनकोड करता है किसको, जो ये जी प्रोटीन है सुपर फैमिली, उसको इनकोड करता है फ्रॉम द जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक है। ऑल्दो numerous classification schemes have been proposed, the superfamily was classically divided into 3 main classes, ठीक है, A, B and C, with no detectable shared sequence homology between classes, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे सुपर फैमिली में बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है, या इसके बहुत सारे हम ऐसा बोल सकते पार्ट्स हैं, ठीक है, या इसके बहुत सारे क्लासेस हैं। बट नॉर्मली इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द ए, बी और सी, ठीक है। तो जो इस पे काम करने वाले हैं, इस पे बहुत सारे ग्लोबल नोबेल प्राइजेस मिले हैं, जैसे कि 2012 में मिला था किसको, ब्रेन और कोबिका और रोबोट लेकोविट्स को, फॉर वर्किंग एज ए क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से इससे पहले 7 नोबेल प्राइज इसी जीपी सीआर के ऊपर मिले हैं लोगों को, ठीक है, फॉर या इन्वेंटिंग या डिस्कवरिंग हाउ दिस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वर्क, ओके। तो ये इसलिए जीपीसीआर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स के जो टारगेट्स हैं वो भी यही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, इसीलिए इस पे बहुत सारे काम होते रहते हैं इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया, सो दिस जीपीसीआर सुपर फैमिली इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, दैट इज द ए, या फैमिली 1 बोलते हैं उसको, फैमिली 1 या ए, दैट दूसरा है फैमिली 2, देन फैमिली 3, ठीक है। अगर हम फैमिली 1 की बात करेंगे, सो इसमें बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, दैट इज रेटिना, रेटिनल में ये प्रेजेंट रहता है, ओडोरेंट्स में ये प्रेजेंट रहता है, ओडोरेंट्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हम केटाकोलामाइंस की बात करेंगे, दैट इज द एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन केटाकोल amines, that is the epinephrine and नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। देन इसी में अगर हम बात करेंगे तो एडिनोसिन, एडिनोसिन के लिए भी है, ठीक है। देन ओपिएट्स, अफीम, अफीम उसके लिए रिसेप्टर से बिलोंग करता है। देन इन कैल्फिन्स है, इन कैल्फिन्स, तो इन सब के लिए जो रिसेप्टर्स है वो फैमिली 1 से बिलोंग करता है, चाहे वो विजन के लिए हो, चाहे वो स्मेल के लिए हो, ठीक है। तो वो सब फैमिली 1 से बिलोंग करता है। अगर हम फैमिली 2 की बात करेंगे, तो फैमिली 2 की हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी रिसेप्टर्स हैं डिफरेंट, दैट इज़ कैल्सिटोनिन,
कैल्सिटोनिन के लिए, ठीक है। और है अल्फा लेट्रोक्सिन, अल्फा लेट्रोटॉक्सिन, देन सिक्रिटिन, इसके लिगेंड्स हैं पैराथायराइड हार्मोन, देन ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ओनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसके लिए जो भी रिसेप्टर्स है वो फैमिली 2 से बिलोंग करता है। अगर हम फैमिली 3 के लिए बात करेंगे तो फैमिली 3 में है ग्लूटामेट, कैल्शियम, ग्लूटामेट, कैल्शियम, गामा, अल्फा ब्यूटेरिक एसिड, देन फेरोमोन्स, ठीक है, दैट इज़ द एक्टो हार्मोन्स। तो इन सब के लिए जो जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर है दैट इज़ फैमिली 3, ठीक है। तो इनके लिए भी अलग अलग रिसेप्टर्स रहते हैं। तो जो फैमिली 1 से बिलोंग करते हैं रिसेप्टर्स, तो उनको हम जो रेटिना के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं, रोडोप्सिन, ठीक है। देन एंजियोटेंसिन है, एडिनोसिन है, एड्रिनर्जिक है, सेरोटोनिन है। तो अलग अलग रिसेप्टर्स भी इस फैमिली 2 से बिलोंग करते हैं। तो मेनली आप इतना याद रखो कि फैमिली 1, फैमिली 2 और फैमिली 3 से डिफरेंट जो रिसेप्टर्स हैं उसके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पर फैमिली के, उसके जो क्लासिफिकेशन है दैट इज फैमिली 1, फैमिली 2 एंड फैमिली 3। देन the largest class by far is the family 1 और class A, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज़ द फैमिली 1, जिससे मैक्सिमम ऑफ द GPCR बिलोंग्स टू। सो ये हो गया किसके बारे में, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे जो जी प्रोटीन है, जैसे ये जी कपल रिसेप्टर्स आपने देखा उसमें बहुत सारा वैरायटी आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं इसी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर, ठीक है, जो अलग अलग लिगेंड को रिस्पॉन्ड करता है। वैसे ही जी प्रोटीन भी डिफरेंट है विच रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट GPCR, ओके। तो अगर हम जी प्रोटीन का देखेंगे तो मैंने आपको पहले बताया जी प्रोटीन इज मेड ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 सब यूनिट से ये बना होता है। सो दे आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इनके पास 3 सब यूनिट है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हेटेरोमेरिक जी प्रोटीन, ओके। So this heterotrimeric G protein distinguish them from other guanine nucleotide binding proteins such as the RAS protein, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मतलब डिफरेंट है जो दूसरे रास प्रोटीन है। तो रास प्रोटीन भी क्या है, गुआनिन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये जो ट्राइम इनका अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से वो इस रास प्रोटीन से क्या अलग है, तो ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब इतना फिलहाल आप इतना याद रखो कि जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होते हैं, दैट इज़ द अल्फा सब यूनिट, दैट इज़ द बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। तो ये इन 3 सब यूनिट से बना होता है। सो अगर हम बात करेंगे द अल्फा सब यूनिट बाइंड्स गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स विच रेगुलेट जी प्रोटीन। तो ये जो अल्फा सब यूनिट है ये मेनली किससे बाइंड होता है, ये गुआनिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, दैट इज़ अ GTP और GDP, ठीक है। GDP या GTP दोनों से किसी के साथ भी ये बाइंड हो सकता है। तो अगर वो GTP के साथ बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, अगर वो GDP के साथ बाइंड होगा तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है हमारा जी प्रोटीन।
तो एक ये भी आप दिमाग में रख दो कि अगर जीटीपी के साथ बाइंड हुआ तो दिस अल्फा सब यूनिट इज एक्टिवेटेड, एंड इफ जीटीपी के साथ बाइंड हुआ तो दिस अल्फा सब यूनिट इज इनएक्टिवेटेड। सो अगर हम रेस्टिंग स्टेट की बात करेंगे, जब वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है, जब हमारे सेल के ऊपर या जी प्रोटीन रिसेप्टर के ऊपर कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे ये अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा ऑल आर प्रेजेंट इन द रेस्टिंग फॉर्म, ठीक है, बाय फॉर्मिंग अ कम्प्लेक्स विथ जीडीपी। तो अगर हम रेस्टिंग कंडीशन की बात करेंगे, रेस्टिंग मीन्स जब यहाँ पे कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, नो सिग्नल, ठीक है, या कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे जो अल्फा है वो मेनली जीडीपी के साथ बाइंड होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो जीडीपी के साथ बाइंड होना मीन्स ये इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और जब जीडीपी के साथ बाइंड होगा तो इट फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स विथ बीटा एंड गामा, ठीक है। तो जीडीपी फॉर्म में ये बीटा और गामा के साथ कम्प्लेक्स बनाया होता है, तो इन तीनों का एक कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ होता है कब, जब ये रेस्टिंग फेज में है, ठीक है। रेस्टिंग फेज में नो सिग्नल, ठीक है, रेस्टिंग फेज में ये तीनों कम्प्लेक्स बनाया होता है विथ अल्फा ग्रुप या अल्फा जो सब यूनिट है बाइंडिंग विद द जीडीपी, ठीक है, इतना याद रखो। देन hormone binding or ligand binding induce a conformational change in the receptor such that cytosolic domain of the receptor interacts with the G protein। तो जैसे ही हम बात करेंगे तो नॉर्मली ये इस तरह से होता है, इसके साथ बाइंड नहीं होता साइटोसोलिक पार्ट के साथ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हार्मोन बाइंड होगा किसके साथ, इस रिसेप्टर के साथ, ठीक है, तो रिसेप्टर के साथ हार्मोन जैसे ही बाइंड होगा तो ये जो साइटोसोलिक पार्ट है वो इसमें एक ऐसा कन्फर्मेशन आ जाता है इस रिसेप्टर में कि वो जी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, ओके। या हम ऐसा बोलेंगे जो रिसेप्टर है इट इंटरेक्ट्स विद द जी प्रोटीन एंड दिस बाइंडिंग स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ बाउंड जीडीपी, या हम ऐसा बोल सकते हैं हाँ। तो जैसे ही ये जो जो रिसेप्टर है उसका जो साइटोसोलिक डोमेन है वो हमारे जी प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, तो उस जी प्रोटीन में ऐसा चेंज आ जाएगा, ठीक है, या इसको ऐसे स्टिमुलेट कर देगा कि जो ये जीडीपी है वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, एंड दिस जीडीपी इज एक्सचेंज फॉर जीटीपी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे हार्मोन यहाँ पे बाइंड होगा, यहाँ पे मैं हार्मोन नहीं दिखाऊंगा, जैसे हार्मोन बाइंड होगा तो ये जो यहाँ पे अभी वो बाइंड नहीं हुए थे, तो जैसे ही बाइंड होगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा तो जीटीपी एक्सचेंज हो जाएगा एंड देयर विल कम द जीटीपी, ठीक है। तो जीटीपी वहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड जीटीपी विल बाइंड विद द जी प्रोटीन, ओके। नाउ द एक्टिवेटेड जीटीपी बाउंड अल्फा, तो अब ये जीटीपी बाउंड होने से क्या होता है, मैंने आपको बताया जीटीपी बाउंड होने से अल्फा जो सब यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही जीटीपी बाउंड होगा अल्फा एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही अल्फा एक्टिवेट हो जाएगा देन द अल्फा सब यूनिट विल डिसोशिएट फ्रॉम द बीटा एंड गामा, तो अल्फा अलग हो जाता है और जो बीटा गामा है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा इन बीटा गामा सब यूनिट से क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है, इन द व्हेन जीटीपी इज बाउंड विद दिस अल्फा। तो ये दोनों, ये भी एक्टिवेट है और ये भी क्या है, एक्टिवेट है, ओके। So both the active GTP bond alpha subunit and the beta gamma complex then interact with their targets to elicit an intracellular response, ठीक है। तो ये भी अपने टारगेट एंजाइम के साथ बाइंड होगा और उस टारगेट एंजाइम या जो भी उसका टारगेट होगा उसको जाके एक्टिवेट करेगा और वहाँ पे एक सेलुलर रिस्पॉन्स डेवलप करेगा। तो इस तरीके से ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद इसी जो अल्फा सब यूनिट है इसी में एक एटीपीएस रहता है, ठीक है। दैट एटीपीएस विल ऑटोमेटिकली कॉजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी इनटू जीडीपी और ये फिर से अल्फा सब यूनिट क्या हो जाता है, फिर इनएक्टिवेट
हो जाता है और अगेन ये तीनों फिर से कंबाइन होके इस रिसेप्टर के पास जाके बाइंड हो जाते हैं, ओके, इन द जीडीपी फॉर्म, दैट इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म। तो इस तरीके से ये इनएक्टिवेट हो जाता है और फिर से ये साइकिल रिपीट होगा यहाँ पे। ओके, ये आया समझ में आपको किस तरह से ये जी प्रोटीन मेनली काम करता है। ओके, तो सिग्नल हार्मोन यहाँ पे बाइंड होगा। पहले जब हार्मोन बाइंड नहीं होगा तो अल्फा बीटा गामा तीनों कम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे और मेनली जो अल्फा सब यूनिट है वो जीडीपी के साथ बाइंड होगा। जैसे ही यहाँ पे हार्मोन बाइंड होगा या कोई सिग्नल बाइंड होगा तो ये जो सिग्नल है ये इस रिसेप्टर में क्या करता है, रिसेप्टर में एक कन्फर्मेशनल चेंज करता है। कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ये जो रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक पार्ट है वो हमारे जी प्रोटीन के साथ क्या होता है, इंटरेक्ट करता है। जैसे ही वो इंटरेक्ट करेगा वो जीडीपी को वहाँ से निकाल देता है और वहाँ पे जीटीपी को ला देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे जीटीपी वहाँ पे बाइंड होगा तो ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है। अल्फा सब यूनिट जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये बीटा और गामा सब यूनिट से क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। अल्फा अलग हो जाता है, बीटा गामा अलग हो जाता है, ठीक है। फिर ये अल्फा सब यूनिट अपने टारगेट एंजाइम्स पे जाके बाइंड होगा, उन टारगेट एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा या इनएक्टिवेट करेगा, ठीक है। वैसे ही ये जो बीटा गामा है वो भी अपने टारगेट एंजाइम पे जाके या तो उनको एक्टिवेट करेगा या तो उनको इनएक्टिवेट कर देगा। तो इस तरीके से ये जो जी प्रोटीन है वो या जो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है अपना फंक्शन शो करता है। तो जैसे हमने देखा था कि जो जी प्रोटीन रिसेप्टर से उस वो एक बहुत बड़ा फैमिली है, इसके बहुत सारे क्लासेस है। तो वैसे ही ये जो जी प्रोटीन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम मेमल्स की बात करेंगे तो जो मेमल्स है, जो मेमेलियन जीनोम है, इट इनकोड्स जीनोम इनकोड्स 20 डिफरेंट अल्फा सब यूनिट, ठीक है, देन 5 बीटा सब यूनिट एंड 12 गामा सब यूनिट। तो 20 डिफरेंट अल्फा सब यूनिट है वो इसमें से किसी भी बीटा सब यूनिट के साथ बाइंड हो सकता है। वैसे ही 12 गामा सब यूनिट है। तो इनके अलग अलग सब यूनिट होने की वजह से वहाँ पे एक वैरायटी देखने को मिलता है किसमें, जी प्रोटीन में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो ये 20 इंटू 5 इंटू 12, तो आपको यहाँ पे हिसाब मिल जाएगा कितने जी प्रोटीन्स वहाँ पे मेमेलियन जीनोम इनकोड करता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे 5 बात करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 अल्फा सब यूनिट है। तो ये वाला इसमें से किसी भी 5 के साथ बाइंड होगा, 1 2 3 4 5। तो वैसे ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, वैसे ही यहाँ पे अलग सब गामा सब 12 है। तो ये जो है अलग 12 के साथ होगा, या अलग 12 से के साथ होगा, या अलग 12 के साथ होगा। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी डेवलप होता है, ठीक है। तो एक ही जी प्रोटीन के इतने सारे फैमिलीज हमको देखने को या क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही जैसे हमारा जी प्रोटीन का बहुत बड़ा फैमिली था, जो जी रिसेप्टर है उसका बहुत बड़ा फैमिली था, वैसे ही इस जी प्रोटीन का बहुत बड़ा फैमिली होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सब यूनिट्स, दैट इज 20 डिफरेंट सब यूनिट्स फॉर अल्फा, 55 सब यूनिट 5 फॉर बीटा एंड 12 जीनोम फॉर गामा सब यूनिट, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे आपको एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जी प्रोटीन में भी और जो जी कपल रिसेप्टर है उसमें भी, ठीक है। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सो डिफरेंट जी प्रोटीन एसोसिएट विद डिफरेंट रिसेप्टर्स, सो दिस अरे ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टू डिस्टिंक्ट इंट्रासेलुलर टारगेट्स। फॉर एग्जाम्पल द जी प्रोटीन एसोसिएटेड विद द इपिनेफ्रिन रिसेप्टर इज कॉल्ड GS, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसके, इपिनेफ्रिन के साथ, जो इपिनेफ्रिन लिगेंड के साथ बाइंड होता है, उस जी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, उस जी प्रोटीन को हम बोलते हैं GS, बिकॉज इट्स अल्फा सब यूनिट स्टिमुलेट्स एडिनाइलेट साइक्लेज, क्योंकि ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड GS। अगर हम और अदर जो प्रोटीन है दैट इज अल्फा एंड बीटा का एक्ट इंस्टेड टू इनहिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज। तो कुछ ऐसे प्रोटीन है जैसे कि GI, तो दिस GI विल ये एक्टिवेट करता है GS वाला जो जी प्रोटीन है, और GI जो जी प्रोटीन है इट्स इनएक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेज। तो अभी हम ये देखेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से
यहाँ पे जो जी प्रोटीन और जी कपल जो रिसेप्टर्स है वो एक डाइवर्स फैमिली यहाँ पे शो करता है, ठीक है। क्योंकि रिसेप्टर के भी बहुत बड़ा फैमिली है, उसके बहुत सारे क्लासेस है, क्लास ए, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, उसी में ही बहुत सारे हमको रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे हमको बहुत डाइवर्स जी प्रोटीन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो जी प्रोटीन डिफरेंट जीपीसीआर के साथ बाइंड होके अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा पहला है दैट इज द जी प्रोटीन दैट एक्टिवेट्स द एडिनाइलेट साइक्लेज। तो उससे पहले मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली कितने सारे फैमिलीज हैं। तो अभी एक टेबल बना लो आप इसमें। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ द, मैं यहाँ पे फैमिली लिखता हूँ, फैमिली, देन एक्शन बाय सब यूनिट, एक्शन बाय सब यूनिट, देन फंक्शन, देन सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर जो वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली देखो, फैमिली है जी एस अल्फ़ा, ठीक है, जिसको बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें अगर हम लिगेंड की बात करेंगे तो इट हैज़ लिगेंड फॉर इपिनेफ्रिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। तो इसमें जो सब यूनिट काम करता है दैट इज़ द अल्फ़ा सब यूनिट, ठीक है। रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर को हम बोलते हैं बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो उसमें से जो जी प्रोटीन में से जो सब यूनिट जो पार्टिसिपेट करता है दैट इज़ द अल्फ़ा सब यूनिट। और इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इट एक्टिवेट्स एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। और इसके जो सेकेंडरी मैसेंजर है दैट इज़ द कैम्प, ठीक है, या हम उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जो साइक्लिक एएमपी है इसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो जीपीसीआर है वो सिर्फ दो उसके थ्रू, पाथवे के थ्रू फंक्शन करता है, दैट इज़ एक तो सीएमपी के थ्रू और दूसरा था फोस्फोआइनोस्टोल के थ्रू, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको सीएमपी देखने को मिला। तो हमारा जो पहला है दैट इज़ द जी एस अल्फ़ा या बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो इपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन जो लिगेंड है उसके साथ बाइंड होता है। देन दूसरा वाला है दैट इज़ द जी आई अल्फ़ा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अल्फ़ा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये मेन रिसेप्टर किस किस लिगेंड के लिए है दैट इज़ द मस्करनिटिक एसिटाइल एसिटाइल कोलिन, एक न्यूरॉन स्टाइल कोलिन रहता है, एक मस्करनिटिक स्टाइल कोलिन रहता है। तो जो मसल में जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर हम ये मेनली पार्टिसिपेट करता है किसके लिए, दैट इज़ एस्टाइल कोलिन के लिए करता है। और मेनली ये हार्ट में प्रेजेंट रहता है, और मेनली हार्ट जो मसल्स है वहाँ पे तो हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो अल्फ़ा सब यूनिट इसका एक्शन शो करता है, और बीटा और गामा सब यूनिट भी यहाँ पे एक्शन शो करता है। बट यहाँ पे देखो सिर्फ अल्फ़ा कर रहा है, बीटा गामा का कोई फंक्शन नहीं है। बट यहाँ पे जो अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इसमें जी प्रोटीन का अल्फ़ा भी पार्टिसिपेट करता है और बीटा गामा भी पार्टिसिपेट करता है। तो अब अल्फ़ा क्या करता है, अल्फ़ा इनहिबिट्स एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। और बीटा गामा सब यूनिट क्या करता है, इट ओपन्स द सोडियम चैनल्स, ठीक है। तो मेनली क्या करता है, जो पोटेशियम चैनल्स है उनको ओपन करता है, कहाँ पे, हार्ट मसल्स में, ओके। देन इससे क्या होता है, इससे जो सीएमपी है वो इंक्रीज हो जाता है, फिर से कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी
डिक्रीज, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है तो एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एडिनाइलेट जो साइक्लेज एक एंजाइम है, एडिनाइलेट साइक्लेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये एटीपी का कन्वर्शन किस में करता है, एटीपी का कन्वर्शन सीएएमपी में करता है, दैट इज साइक्लिक एएमपी में करता है, ठीक है। अगर ये एक्टिवेट हुआ तो एटीपी कन्वर्ट होता रहेगा किस में, साइक्लिक एएमपी में, जिससे साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ये इनएक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे एटीपी का कन्वर्शन साइक्लिक एएमपी में नहीं होगा, और जो साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। देन जब ये, अब हम बीटा गामा की बात करेंगे तो इसका एक्शन क्या होता है, जब सोडियम चैनल्स पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो वहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होगा, चेंज होगा, ओके। देन ये हो गया दो, दैट इज द जी एस अल्फा जो एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को, और दूसरा है जी आई अल्फा जो क्या करता है, इनहिबिट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को, ठीक है। और साथ साथ में ये जो जी आई अल्फा है तो वो सोडियम चैनल्स को भी ओपन करता है थ्रू बीटा गामा सब यूनिट, एंड विच कॉजेज द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन उसके बाद जो थर्ड है, जो थर्ड वाला है दैट इज जी क्यू अल्फा, जी क्यू अल्फा फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। सो ये इज द अल्फा सब यूनिट। तो इसका जो सब यूनिट कौन सा पार्टिसिपेट करता है, दैट इज द अल्फा सब यूनिट, एंड ये एक्टिवेट क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द फॉस्फोलिपेज सी बीटा, ठीक है। तो क्या एक्टिवेट करता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, इसको एक्टिवेट करता है। अभी हम देखो कितना फर्क है, वहाँ का जो अल्फा सब यूनिट है वो अलग तरीके से काम करता है, वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा था, बट इसका जो टारगेट है इस जी प्रोटीन का, दैट इज द फॉस्फोलिपेज सी बीटा, ठीक है। जब फॉस्फोलिपेज सी बीटा एक्टिवेट होगा तो दिस फॉस्फोलिपेज सी बीटा विल एक्टिवेट और will increase the concentration of inositol phosphate 3 एंड डायसाइल ग्लाइसरोल। तो ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है तो ये किस कौन से लिगेंड के साथ बाइंड होगा, दैट इज द वेसोप्रेसिन है और इपिनेफ्रिन है, ठीक है। तो इपिनेफ्रिन हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे भी देखें, ठीक है। तो वो इपिनेफ्रिन अगर इस टाइप के फैमिली के साथ बिलोंग होगा, दैट इज बाइंड होगा, दैट इज द जी क्यू अल्फा, उसके साथ अगर बाइंड होगा तो इपिनेफ्रिन फॉस्फोलिपेज सी बीटा को एक्टिवेट करेगा। अगर जो इपिनेफ्रिन है वो अगर जी क्यू अल्फा, सॉरी, जी एस अल्फा के साथ बाइंड होगा, जी एस अल्फा जो हमने पहले पढ़ा था, अगर इसके साथ इपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, ठीक है, रिसेप्टर की वजह से। तो उसके बाद और एक आता है, दैट इज द ये हो गया थर्ड हमारा। उसके बाद फोर्थ है, दैट इज द जी टी अल्फा, ठीक है। तो मेनली ये टी फॉर ट्रांसड्यूसिंग है, एंड ये लाइट परसीविंग में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज अ विजन। तो यहाँ पे जो टारगेट है दैट इज द लाइट, लिगेंड है दैट इज द लाइट। तो मेनली यहाँ पे जो एक्शन करता है सब यूनिट दैट इज द अल्फा सब यूनिट, ठीक है। सो तो अल्फा सब यूनिट एक्शन करेगा तो फंक्शन क्या होता है, इट एक्टिवेट्स साइक्लिक जी एम पी फॉस्फोडाइस्टिरेज, फॉस्फोडाइस्टिरेज इन वर्टिब्रेट रॉट सेल, जो हमारे
रेटिना में पाया जाता है रॉड सेल, ठीक है। तो वो उन रॉड सेल्स में क्या करता है, जो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेस है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे जो साइक्लिक जीएमपी है इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम सेकेंडरी मैसेंजर देखेंगे तो साइक्लिक जीएमपी का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा सेल है वो क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइज्ड। हाइपर पोलराइज्ड मीन्स वहाँ पे वो उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ द हाइपर पोलराइज। ओके, देन और एक रिसेप्टर आता है इसमें, ये हो गए चार। अब याद, ये साथ साथ में अब लिखना, ठीक है। और एक आता है दैट इज द GO अल्फा, ठीक है। तो जो GO अल्फा है दैट इज द मेनली, ये किसके लिए है, दैट इज द एस्टाइल कोलिन है, ठीक है, ऑफ इंडोथीलियल सेल। तो इसमें जो अल्फा सब यूनिट है वो एक्टिवेट होता है। अल्फा सब यूनिट फिर से क्या करता है, फॉस्फोलिपिड्स बीटा को एक्टिवेट करता है, और अगेन IP3 और DAG को वो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये फिर इनका जो सेम है, दैट इज द फिफ्थ वन। देन इसमें जो बीटा सब यूनिट है, बीटा और गामा, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो बीटा और गामा है, इसका जो दूसरा सब यूनिट है वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये बीटा और गामा सब यूनिट क्या करता है, इसका फंक्शन, दे एक्टिवेट्स पोटेशियम चैनल्स एंड क्लोजेस सोडियम चैनल, जिससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट है, दैट इज द गोल्फ अल्फा। सिक्स्थ दैट इज द गोल्फ जी, दैट इज जी प्रोटीन फॉर ऑल्फैक्टरी अल्फा, ठीक है। तो ये मेनली स्मेल में पार्टिसिपेट करता है, ये जो जी प्रोटीन है। तो इसका जो एक्टिवेट होता है दैट इज द अल्फा एक्टिवेट होता है। अल्फा क्या करता है, इट एक्टिवेट्स एडिनाइलेट एडिनाइलिल साइक्लेज इन ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स। तो जो ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स है उसमें ये एक्टिवेट करता है किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को, एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक AMP। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर है दैट इज द साइक्लिक AMP. So this cyclic AMP directly opens sodium channels in the plasma membrane, leading to membrane depolarization and initiation of a nerve impulse. तो ये जो साइक्लिक AMP क्या करता है, वो सोडियम चैनल्स को ओपन करते हैं। जैसे सोडियम चैनल्स ओपन होगा तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा या मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा, जिससे जैसे मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा, so this membrane depolarization will cause and नर्व इम्पल्स, या हम उसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट होगा और जो सिग्नल है हमारे ब्रेन तक पहुँचेगा थ्रू द न्यूरॉन्स। तो ये हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो मेनली पार्टिसिपेट करते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करने में और एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करने में। तो हम अभी वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन सा जो कौन सा जो जी प्रोटीन है वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है, और वो एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। और कौन सा जो रिसेप्टर है वो एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, और किस तरीके से इनहिबिट होने के बाद वहाँ पे क्या फंक्शन हमको देखने को मिलेगा, और कौन सा जो जी प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।